Hello everyone, good morning. Welcome back in the topic AP. In this topic, first of all, we're going to understand few important questions from SN itself. One, this which we had skipped in the last video, that and then this one. And then I have chosen some important questions from the textbook as well as some difficult question. Those also will be completing in this session. The session might go quite long. So what you can do is one by one all the questions you can solve instead of watching the video in one go. So as I have already said, already given the instruction for this, that please do not watch the video like how you normally watch the YouTube videos. Take the pen and pencil in your hand, take the notebook and then go on solving. Okay, help you, this video will help you only to solve. This video won't help you to remember things. So to remember the things you have to practice, you have to solve by yourself. Okay, so make sure that now also, as it is difficult one, you take the pen, pencil and the book in your hand and start solving. It's the 20th question from your PDF given to you. तो PDF का ये क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, सिंपल है. Sum of first 10 terms of an AP is 150. That means S10 is given, that is minus 150. Sum of next 10 terms, that means देखो 1 to 10 है, उसके बाद 11th टर्म होती है एंड देन वी हैव टिल 20. ठीक है, तो सम ऑफ 1 to 10 टर्म्स का जो एडिशन है, इसका एडिशन ऐसे 1 2 3 प्लस प्लस एंड ऑल. तो 10th टर्म एस्ट फर्स्ट टर्म. ओके, और आई विल राइट इन विद मोर क्लियरिटी like A plus B plus C plus dash 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 plus some like P, which is 10th term. Imagine just it is a 10th term, plus then Q R plus S dash 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 maybe U. Okay, this is 20th term. Imagine, just imagine. I may not be like that, I'm just telling you. Okay, so this is the 11th term. Addition of from here till here is given minus 150 and addition of from here till here it is given minus 550. तो इसका एडिशन है minus 150 और इसका एडिशन है minus 550 and you are expected to find AP. तो AP मुझे कैसे मिल सकता है? I'll just give you the idea. तो I can just put the value of the formula for S10. S10 is equals to, और जो Sn का फॉर्मूला है n by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d, right? तो S10 is equals to 10 by 2 which is 5 into bracket 2a पता नहीं है plus n minus 1 मतलब 9d and all that equals to minus 150. This will give me the equation in A and D, and the other one, this will give me the equation in A and D, and together I will solve these two equations to get the answer for A and D, and once I get A and D I will be getting AP. लेकिन second equation मुझे कैसे मिलेगा? How can I get second equation? Because as I have already declared in the beginning of Sn that जो Sn होता है, Sn is the sum from the first term, not from anywhere in between. तो ये जो 550 है ये is almost useless because I cannot get any equation like ऐसे ऐसे हो नहीं सकता 11 to 20 का सम का कुछ फॉर्मूला हो, ऐसा हो ही नहीं है, होता ही नहीं. सो लेट मी जस्ट टेल यू दैट वी कैन नॉट कंसिडर दैट minus 550 कैन गिव यू डायरेक्टली इक्वेशन. तो वो यूजलेस तो नहीं होगा बट एटलीस्ट इट वोंट गिव यू डायरेक्टली इक्वेशन. तो फिर कैसे इक्वेशन आएगा? इस 550 का -550 का यूज़ कैसे करेंगे? ओके, अनलेस अंटिल वी हैव एनी फॉर्मूला वी कैन नॉट यूज इट. तो हम लोग करते क्या है यहाँ पे, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग that 550, what I will do, I will add these numbers, these two numbers. Okay, if I add these two numbers, isn't it, it would be 700 minus 700, you know, minus 700, and this is going to be S20, and that is interesting. ठीक है, समझ में आ गया? तो S10 is equals to minus 150 and S20, that means total sum is going to be this plus this, minus 150 plus 550 minus 550. तो that will give me S20. ये इंटरेस्टिंग है इस क्वेश्चन में. तो S20 is equals to minus 550. तो I have S20 directly I'll write 20 by 2
इंटू ब्रैकेट 2a प्लस 19d इज इक्वल्स टू माइनस 550. दैट्स इट. हाँ, अभी हम लोग इस 10/2 विच इज़ 5 को शिफ्ट करते हैं वहाँ पे. 10/2 इज़ 5. सो इट इज़ 2a प्लस 90 इज इक्वल्स टू, डिवाइड होगा 5 तो माइनस 5 3 ज़ा 15 एंड द 30. इक्वेशन नंबर 1, या कि आपका इक्वेशन नंबर 1. ये 10 हो जाता है, 0 कैंसिल. सो 2a plus 19d is equals to minus 55. I hope you understand the equation number 1 and equation number 2. Subtracting these equations, subtracting होगा, अरे रे 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 गलती कर दी ना हमने. यस, ये माइनस 150 प्लस माइनस 550 होगा, तो दैट वुड बी 700. आई एम रियली वेरी सॉरी, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी, मेकिंग अ लॉट ऑफ एरर्स. माइनस 700. ठीक है, सॉरी. तो वी हैव 2a प्लस 19d इज इक्वल्स टू, जो माइनस 700 था उसको डिवाइड बाई 10 करो तो माइनस 70 हो जाएगा, एंड दैट विल बी माई इक्वेशन नंबर 2. So when I solve this equation number 1 and 2, I have to subtract these equations, so I can easily do that. माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 2 गेट कैंसिल. 19 माइनस 9 माइनस 10d, ये बहुत ईजी है, सो आई डोंट वेस्ट माई टाइम इन दिस. तो 40 हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा. तो d विल बी इक्वल टू -4 एंड a विल बी इक्वल टू, आई थिंक यू कैन ईजिली गेट दैट a वैल्यू. तो a एंड d मिल गया तो आपका AP आ जाएगा. आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू मोर. ओके, ये मिस्टेक बस आप लोगों को कवर अप करनी है. इट इज़ -700. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस. आई एम रियली वेरी सॉरी. पता है इन द बिगिनिंग जब मैंने वो मिस्टेक की थी आप कंफ्यूज हो गए होंगे, बट एटलीस्ट नाउ इट इज़ वेरी क्लियर. ठीक है ना. चलो, ये क्वेश्चन हमने देखा था, हमने छोड़ दिया था. आई टोल्ड यू दैट दिस क्वेश्चन इज़ नॉट दैट ईजी टू सॉल्व इट. देखते हैं. सम अप टू 13 टर्म ऑफ एन AP, मतलब S13 इज इक्वल टू 21 एंड सम अप टू 21 टर्म ऑफ एन AP इज 13. आपको लिटरली ये क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज दिस क्वेश्चन विल ट्रबल यू. S13 का मतलब क्या होता है? 13/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 21. एंड S21 का मतलब क्या होता है? 21/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस 20d इज इक्वल्स टू 13. आपको समझ में आ गया होगा कि आई कैन टेक 2 कॉमन और आई कैन डिवाइड बाई 2 टू द कंप्लीट टर्म. तो 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं. 13 इंटू ब्रैकेट a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 21 एंड 21 इंटू ब्रैकेट a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 13. मैक्सिमम इफ यू से I can multiply by 13. So 13a 78d is equals to 21 and 21a plus 210d is equals to 30. अभी आपको लग गया होगा कि ये तो बहुत सिंपल है, 2 इक्वेशन मुझे मिल गए, जैसे आपको अभी भी लग रहा होगा 2 इक्वेशन मिल गए. अभी आई कैन ईजिली फाइंड आउट द आंसर फॉर a and d. But if you look at the equation, you will come to know that is it that easy to get the coefficient same? It is just going to become impossible to find out the answer for a and d. And ultimately, I'll tell you, after maybe even if you try something and if you consider this question is lengthy, and if you multiply by 13 to this number, 21 to this number, and 31 by this number, 13 by this number, then also the answer for a is going to be something like very weird. Weird means like ऐसे 68 upon 123 ऐसे कुछ तो एक आंसर आता है, ऐसे कुछ तो एक आंसर आता है. तो दैट वैल्यू अगेन पुटिंग इनटू द इक्वेशन एंड देन गेटिंग d एंड देन फाइंडिंग 34th सम, नाउ दैट इज रियली टफ जॉब. ओके, यू कैन ट्राई फाइंडिंग द आंसर फॉर a and d, यू विल कम टू नो हॉरिबल आंसर्स यू गेट. ओके, हाँ, देन द अनदर क्वेश्चन इज दैट द क्वेश्चन इज दैट डिफिकल्ट? नो, बट द क्वेश्चन इज गोइंग टू बिकम वेरी सिंपल. तो व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, दैट आई विल जस्ट सर्च फर्स्ट. आई हैव टू फाइंड आउट सम अप टू 34th टर्म, मतलब S34 आपको फाइंड करना है, विच इज़ 34 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस 33d. देख लो, समझ लो, है ना. 2a प्लस 34 माइनस 1 33d, आपको ये बेसिकली फाइंड करना है. ओके, सो यूजिंग दिस 2 इक्वेशंस somehow I will try to manage to get that answer. Okay, मतलब 2a plus 33d directly if I get, then it would be better for me.
तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन दो इक्वेशन को विदाउट मेकिंग देयर कोएफिशिएंट सेम, आई एम जस्ट गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट, जस्ट गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन हम करते हैं, तो इसका साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस। सो 21a माइनस 13a, 21 माइनस 13, इट इज़ 8, ऑफकोर्स 8a प्लस, ठीक है। 210 माइनस 78, तो 210 माइनस 78, तो 2 1 कैरी, 11 माइनस 8 3 1 कैरी 132, तो 132d ऑफकोर्स इवन दैट इज पॉजिटिव इज इक्वल टू ये आएगा -8। ना इज इट पॉसिबल टू डिवाइड ऑल दीज नंबर्स बाय 8? आई थिंक यस इट इज़ पॉसिबल। आई थिंक दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। ये जो 32 दिख रहा है आपको, ये तो डिविजिबल बाय 8 नहीं है, 8 1 नहीं है तो 4 से तो एटलीस्ट मिनिमम डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 4 से तो ओके। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 d इज इक्वल्स टू -2। Check this equation carefully. Is that I am getting 2a plus 33d directly? Yes. So what I am going to do, 34 by 2, 2a plus 33d, I will be directly putting here -2 here, and answer is -34 is S34. देखा कितना कितना वियर्ड सा क्वेश्चन था एंड इजीली सॉल्व हो गया। लेकिन ये याद रहना बहुत ज़रूरी है ऑफ दिस कैटेगरी क्वेश्चन। ये हमेशा ऐसे आता है 13 का 21 एंड 21 का 13 एंड 13 प्लस 21 का एडिशन, मतलब 13 प्लस 21 कितना होता है, 13 प्लस 21 इज इट 34? यस। तो 34th टर्म का आपको सम फाइंड करना होता है। ये नॉर्मली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन करके रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके डन, क्लियर। तो चलो अभी हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे। ये क्वेश्चन तो ईजी था, ईजी ही था, दैट्स नॉट, इट वाजंट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन याद रहना चाहिए। तो चलो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग था, तो आई थॉट कि यू मस्ट नो दिस क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 APs हैं, जब भी 2 APs आते हैं ना, तो उसका A एंड D अलग अलग लेना चाहिए, ठीक है, डिपेंड, A एंड D क्या लेना चाहिए, अलग अलग लेना चाहिए। 2 APs हो तो यहाँ पे 2 APs है, तो एक का A हम लोग ऐसे स्मॉल a लेते हैं एंड दूसरे का कैपिटल A ले लेते हैं। हैव सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब इसका D एंड इसका D सेम है, तो इसलिए हमने सेम सिंबल यूज़ किया। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, मतलब इसका 100th टर्म एंड इसका 100th टर्म, मतलब A100 एंड इसका A100 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो A100 माइनस कैपिटल A100 इज इक्वल्स टू 100, ये दिया हुआ है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, मतलब हमें फाइंड करना है A1000 माइनस A1000, हमें फाइंड करना है कितना आता है। ये समझ में आ गया है? कुछ नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। A100 का मतलब क्या होता है, A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D, D विल रिमेन सेम इज इक्वल्स टू 100, ये दिया हुआ है। ओपन करेंगे ब्रैकेट को, A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100, एज दिस इज सेम A माइनस A इज गोइंग टू बी इक्वल टू 100। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अदर देन दिस। अभी ये फाइंड करेंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू, देख लो, दिस इज इक्वल्स टू A प्लस 999D माइनस ऑफ A प्लस 999D, तो दिस वुड बी A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आई गेट A माइनस A ओनली, तो वही आंसर आएगा 100 ही। तो लेट मी टेल यू, बेसिकली आई टेल यू वन थिंग, कि कोई भी नंबर ले लो आप लोग, मतलब A78 एंड A78 के बीच में भी डिफरेंस अगर चाहिए तो उसका आंसर 100 ही आएगा, है ना। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म ऑफ दिस AP इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म? वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन बिफोर दिस। हमने करते क्या इस क्वेश्चन को, लेट 0 बी द टर्म ऑफ AP।
If 0 is a term of AP, then we write an is equals to a plus n minus 1 into d. an 0 लेते हैं हम लोग, a है 121 plus n minus 1 into d is minus 4 I think, minus 4. तो minus 1 to 1 divided by minus 4 is equals to n minus 1 plus it get cancelled. 4 3s are 12, 0.42 is 8 and something like 5 you get n minus 1. तो माइनस 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, 31.25 इज इक्वल टू एन. तो दैट दिस शोज दैट जीरो इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी. तो इट्स वेरी श्योर दैट जीरो इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी. लेकिन 31 एंड 32 के बीच में जीरो आ रहा है, इसका मतलब 32nd टर्म, देयरफॉर 32nd टर्म इज नेगेटिव टर्म. ऑफ कोर्स दैट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. देयरफॉर A32 इज इक्वल टू a प्लस 31d. ट्राई करते हैं. 121 प्लस 31 इंटू माइनस 4. 121 प्लस माइनस इट शुड कम -3 इज माई आंसर. देखा, नेगेटिव आ गई. दैट्स इट, सो सिंपल. व्हाई डिड आई चूज दिस क्वेश्चन इवन आफ्टर सीइंग दिस क्वेश्चन इन आवर रेगुलर PDF? द रीज़न इज, ये n जो वैल्यू है ये डेसिमल में आती है. हमने जो किया था उस क्वेश्चन में डेसिमल में नहीं आती है. तो कंसिडरिंग दैट आप ऐसे कंफ्यूज ना हो एग्जाम में डायरेक्टली व्हेन यू गेट दिस क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया. तो 31.25 भी आया तो भी हमें नेक्स्ट नंबर ही लेना है विच विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म. नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू लेनी है. तो ये भी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, ऑप्शनल एक्सरसाइज का. आगे बढ़ते हैं. ये थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन है, ये अभी करेंगे नहीं, अभी ये करते हैं. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC सच दैट द नंबर्स जो दिखे आर इन AP, मतलब A, 10, B, C एंड 31 आर इन AP. देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो वही रहता है, लेकिन ट्विस्ट करके देते हैं. ऐसे दिया अभी, दे आर इन AP. दे आर इन AP मतलब क्या है? A2 विल बी 10 एंड A1 2 3 4 A5 विल बी 31. मतलब क्या, A2 का मतलब क्या है? A प्लस डी इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1. वही चीज़ है. A5 मतलब A प्लस 4D इज इक्वल टू 31, इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को सेपरेट करो, माइनस माइनस माइनस. A माइनस A 0, 4D माइनस D 3D, 31 माइनस 10 इज 21, D विल बी इक्वल टू 7. बात समझ में आ गई? D7 आ गया, A3 आ गया, A विल बी 3. अगर A3 आ गया तो अपना वाला A वैल्यू इज इक्वल टू 3, B वैल्यू इज A3, थर्ड टर्म है, विच इज A प्लस 2D. बराबर ना? तो 3 प्लस 14 17 आ गया, तो B विल बी 17. वैसे C विल बी 17 प्लस D. C विल बी 17 प्लस D, है. पिछले वाले टर्म में 7 ऐड कर दिया, D ऐड कर दिया, तो इट विल बी 24 आ गया. दैट्स इट. 24 प्लस 7 इज 31. तो वो करेक्ट है. राइट, हो गया. सम ईजी था, लेकिन क्या दिया है इसको समझना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट्स द रीज़न आई टुक दिस क्वेश्चन. हाँ, ये तो हमने कर दिया है, ये भी कर दिया है. ओके, ये एक HOTS कैटेगरी क्वेश्चन है, ये हम लोग बाद में लेने वाले ऐसे वाले सारे क्वेश्चंस. तो अभी तक इतना काफ़ी है. यू कैन ट्राई कंप्लीटिंग ऑल दिस क्वेश्चंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है. ठीक है, ये क्वेश्चन तो ईजी था, हमने किया हुआ था. ये क्वेश्चन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट बट ईजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको. दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर बिकॉज वी हैव समथिंग, some weird value of S20 that what wasn't given and we could achieve that quickly, and that's it. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. आज के लिए इतना ही. बाय बाय, सी यू टुमारो.